Solution. Find the equation of the line passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. So equation of line in intercept form is x by a plus y by b is equal to 1. You can say this as 1. Now it is given that it is passing through the point 2, 2. So since it is passing through the point 2, 2, therefore this point will satisfy this equation 1. So 2 by a plus 2 by b is equal to 1, which implies 2b plus 2a is equal to ab, cross multiplying. So you can write this as a plus b is equal to ab by 2. You take this as 2. Now it is given that sum of intercepts is 9. So you can say here given a plus b is equal to 9. So it is 3. So by 2 and 3 we have a plus b is 9. So we put the value of a plus b here. So 9 is equal to ab by 2, which implies ab as 18. So we have product as 18 and sum as 9. So we can find the formula for a minus b, that is a minus b will be equal to a plus b whole square minus 4ab under the root, that will be equal to 9 square minus 4ab, that is 18. So it is 81 minus 72. So it is under root 9, that is 3. So therefore a plus b is 9 and a minus b is 3. So adding these two, we have 2a is equal to 12, which implies a is equal to 6. Now putting the value of a in this, we have 6 plus b is equal to 9, which implies b is equal to 9 minus 6, that is 3. So we have calculated the value of a and b. Therefore required equation of the line is x by a plus y by b is equal to 1. Okay, so it is your answer. ऐसे सॉल्व करेंगे आप इसको. यहाँ पर आपको सम ऑफ इंटरसेप्ट दे रखा है a plus b is 9
और इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन है 1, ये 2 2 से पास करती है, तो 2 2 को इसमें पुट कर देंगे, तो इससे आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको 2 ले लेंगे। 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू हम निकाल के इस वाली इक्वेशन में यहां पर पुट कर देंगे, तो दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन। Find the equation of line through the point 0, 2, making an angle of 2 pi by 3 with the positive direction of x-axis. So line is passing through the point 0, 2, and slope is equal to m is equal to tangent of the angle subtended by the line with the positive direction of x-axis. So 2 pi by 3. You can calculate this, that is tan of pi minus pi by 3. You can write like this, and it is pi minus something that is in second quadrant, and all sin tan cos. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, बाकी सबके नेगेटिव आएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 10 पाई बाई 3, दैट इज माइनस 1060 डिग्री, that is under root 3. So it is slope. So therefore equation of required line will be y minus y1 x minus x1, 0 2 से पास कराएंगे, और स्लोप यहां पर ये है माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा y minus 2 is equal to minus root 3x. You can write this as root 3x plus y minus 2 is equal to 0. जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आप लिख दिया इसको, तो इट इज योर आंसर। नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट. सो एनी लाइन पैरेलल टू इट विल हैव स्लोप सेम, दैट इज माइनस रूट 3, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन. 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन का मतलब है 0 माइनस 2 से पास करती है लाइन, ओके, इसका मतलब ये है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस y1 x माइनस x1, और स्लोप इसके पैरेलल है पहली वाली लाइन के, तो स्लोप विल बी माइनस रूट 3. तो यू कैन राइट दिस एज y प्लस 2 is equal to minus root 3x, which implies root 3x plus y plus 2 is equal to 0. तो ये आपकी सेकेंड लाइन की इक्वेशन आ गई, ऐसे आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन। The perpendicular from the origin to the line meets it at the point minus 2, 9. तो आप एक लाइन ले लीजिए, ओके, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मिलता है माइनस 2, 9 पॉइंट पर, तो दिस पॉइंट इज माइनस 2, 9, ओके, से दिस पॉइंट इज M and it is perpendicular here, और ये आपका ओरिजिन है, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट है। आपको इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है, तो आप स्लोप ऑफ OM निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ OM दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, so 9 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, that is minus 9 by 2. So therefore slope of line L will be इसका reciprocal with negative sign because both are perpendicular. So it will be 2 by 9. Therefore equation of line L will be y minus y1, माइनस 2, 9 से पास करा दीजिए, x माइनस
-2 and slope you have calculated as 2/9. So it will be 9y minus 81 is equal to 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो 2 2 जा 4. So you can write this as 2x minus 9y plus 81, 4 यहाँ पर ऑलरेडी है, is equal to 0, which implies 2x minus 9y plus 85 is equal to 0. तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई. ओके, so it is your answer. Next question. Question number 16. L is the length in centimeter and C is the temperature. Okay. So in an experiment, L is equal to 124.942 when C is 20. Okay. And L is equal to 125.134 when L is 110. So express L in terms of C. तो आप x एक्सिस पर C ले लीजिए और y एक्सिस पर L की वैल्यूज. ओके, और यहां पर उसने कहा है कि C की वैल्यू जब 20 है, मान लो ये 20 है, तो L की वैल्यू यहां पर 124.942 है. तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा 20 एंड y एक्सिस पर पॉइंट है 124.942. ओके, इस पॉइंट को आप A कह सकते हैं. जब C की वैल्यू 110 है तो यहां पर दिया हुआ है B, और ये पॉइंट आपका आ जाएगा 110 और L की वैल्यू यहां पर दी हुई है 125.13. ओके, तो A और B को आप ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस और आगे बढ़ा देंगे इस तरह से. अब यहां पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, से दिस पॉइंट इज C, ये पॉइंट यहां पर आप C ले लेते हैं, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहां पर ये जो पॉइंट आएगा से पॉइंट P, इट विल बी CL. क्लियर? तो आप देखेंगे A, B, P ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इसमें L को C की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला है. यहां पर हमने C जब वैल्यू है तो ये हाइट L होगी. ओके, तो आप AB लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए. y माइनस 124.942 y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, 20 आ गया, और स्लोप अभी हमने निकाला था, आप निकालेंगे y2 माइनस y1, 134 माइनस 124.942 अपॉन 110 माइनस 20. ये आपने AB की इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन ऑफ AB. इट इज इक्वेशन ऑफ AB, लाइन AB जो है. तो इसको आप सॉल्व करेंगे. y इज इक्वल टू, यहां पर सॉल्व कर लेंगे, 4 में से 2 गया 2 और 13 में से 4 गए 9, और यहां पर आप देखेंगे 10 बचेगा, तो 10 में से 9 गया 1 और 0.192. डिनोमिनेटर में यहां पर बचेगा 90. क्लियर? और x माइनस 20 और ये इधर आ जाएगा प्लस 124.942. ओके, ये हमने इक्वेशन निकाल ली है. इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB. इक्वेशन ऑफ लाइन AB हमने निकाल ली. अब इसमें आप देखेंगे जब x की वैल्यू C है
तो y की वैल्यू यहां पर l है। ओके, ये लाइन P पॉइंट से भी पास करती है, तो सिंस इट पासेस थ्रू पॉइंट P, दैट इज CL, देयरफॉर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर देंगे, तो y की जगह l इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 और x की जगह c -20 प्लस 124.942। ये आपका आंसर आ गया। ओके, इट इज योर आंसर। एल को सी की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। इसमें सी की वैल्यू आप डालते जाएंगे टेम्परेचर की, तो लेंथ निकलती चली जाएगी। तो ये फार्मूला बना दिया आपने एल को सी की फॉर्म में। ओके, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, यही उसने कहा था, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। तो ये आसान है, पहले आप एवी की इक्वेशन निकाल लीजिए, पी पॉइंट उसमें पुट कर दीजिए, दैट्स ऑल। ओके, अब इसमें सी की वैल्यू आप 20 डाल के चेक कर लें। तो सी की वैल्यू देखो, आप यहां पर अगर 20 डालते हैं, यहां पर इस सी की वैल्यू आप 20 डालेंगे तो 20 माइनस 20 0, ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 124.942। वही वैल्यू है, 20 पर आप देखेंगे सेम वैल्यू है ना। अब यहां पर सी की वैल्यू 110 डालकर देखिए ये वाला, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी एल की। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू यहां पर सी की डालेंगे तो एल की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो ये फार्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Okay, assume a linear relation between selling price and demand. How many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? तो यहां पर आप लिखिए रेट, एक्स एक्सिस की पर आपने ले लिया रेट, और यहां पर वाई एक्सिस पर आप ले लेंगे डिमांड। ओके, वाई एक्सिस पर आप ले लेंगे यहां पर डिमांड। बस इधर लिख लेते हैं, यहां पर इस डिमांड, जितना मिल्क उसने सेल किया है। तो इसने कहा है कि 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से, जब रेट था 14, तो उसने सेल किया यहां पर 980 लीटर। तो आप लिख सकते हैं 14 रेट पर उसने सेल किया 980 लीटर। इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए। फिर रेट उसने कर दिया 16 रुपए, तो 14 के बाद 16 रेट हो गया यहां पर, तो उसने सेल किया 1220 लीटर। बी पॉइंट ले लीजिए, रेट है 16 और दूध उसने बेचा है 1220 लीटर। ओके, फिर वो कहता है कि 17 रुपए अगर रेट होगा तो कितना दूध वो बेचेगा। तो आप यहां पर आप देखिएगा, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे ए को बी से, वी विल ज्वाइन ए टू बी और इसको आगे बढ़ा देंगे लाइक दिस। तो 17 पर यहां पर ये पॉइंट आ रहा है आपका, तो इस पॉइंट को आप पी पॉइंट मान लीजिए, जैसे अभी आपने किया था। पी पॉइंट रेट है जब आपका 17, तो कितने लीटर दूध वो बेचेगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आप ए बी की इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी वो आ जाएगी आपके पास y माइनस वाई वन 980, x माइनस एक्स वन 14, और यहां पर स्लोप आ जाएगा, स्लोप 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, 12 में से 8 गया 4, यहां बचेगा 11, 11 में से 9 गया 2, और यहां पर बचेगा 2, x माइनस 14, और ये इधर आ जाएगा प्लस 980। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 120 x माइनस
14 प्लस 980। तो आपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये फार्मूला बना लिया y का x में, y इज ए फंक्शन ऑफ x हियर। ओके, तो यहां पर अब आप देखेंगे जब 17 है x की वैल्यू तो y कितना, तो y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 17 पर आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगी 120, 17 माइनस 14 प्लस 980। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 में से 14 गया 3, 12 तिया 36, 360 जमा 980। तो ये आपका आ जाएगा 0, 8 6 14, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 3 13, 1340। ओके, तो जब x 17 है तो y की वैल्यू यहां पर आ रही है 1340। ये आपका आंसर आ गया 1340 लीटर। 17 रुपए का अगर वो रेट रखता है पर लीटर तो 1340 लीटर दूध वो बेच पाएगा। ये हमने यहाँ लीनियर फंक्शन से इस तरह से बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं ए और बी, उससे पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें ये निकाल लेनी है और इससे y इज ए फंक्शन ऑफ x आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू इसमें डालते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। उसने कहा x की वैल्यू 17 है तो y की बताओ, x की वैल्यू आपने 17 डाली तो y की वैल्यू 1340 आ गई। अगर 18 रेट करेगा तो क्या होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 18 डाल देंगे तो y की आ जाएगी। अगर वो कहता है 20 रुपए पर लीटर रेट करता है तो x की वैल्यू 20 डालेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से ये लीनियर फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, लीनियर फंक्शन। ओके, स्ट्रेट लाइन है। तो केवल 2 पॉइंट हमको चाहिए होते हैं यहाँ पर a और b। आगे के पॉइंट्स की एबेसिसा अगर हमको पता है तो हम ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, p is a point, midpoint of a line segment between axes। तो देखिएगा लाइन सेगमेंट पहले एक्सिस के बीच में हम ले लेते हैं यहां पर लाइक दिस। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट है, दोनों तरफ एरो लगा सकते हैं क्योंकि इसको बढ़ा सकते हैं। इट इज अवर लाइन एल। यहां पर ये काटती है से जे पर और यहां पर ये काटती है से के पर। ओके, और ये पॉइंट हमने ले लिया कैपिटल A0, स्मॉल नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल ए वो यूज कर रहा है। ये पॉइंट के आ गया 0 कैपिटल बी। ओके, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन कैपिटल ए प्लस y अपॉन कैपिटल बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होगी, इसको 1 कह लिया। अब यहां पर इसका मिड पॉइंट है जेके का, P is midpoint, small ab are the coordinate. So P point का A will be 0 plus A by 2 and B will be B plus 0 by 2, midpoint formula से। So it will be A is equal to A by 2 and B is equal to capital B by 2। यहां से कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी 2A, यहां से कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी 2 स्मॉल बी। इन ए और बी की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। सो देयर फॉर 1 इंप्लाई x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 वी गेट x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। यही उसने कहा था शो करना है, तो आप यहां पर देखेंगे ये लाइन की इक्वेशन है। ओके, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो ऐसे करना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी यूज करेंगे, स्मॉल ए बी यूज किया तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्मॉल ए बी वह यूज कर रहा है। मिड पॉइंट है पी जेके का, तो 1:1 रेशो में होगा। मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज निकालकर इंटरसेप्ट फॉर्म जो लाइन की होती है उसमें हमने पुट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। So it is question number 19 of exercise 10.2. R is a point having coordinates HK, divides a line segment between axes in the ratio 1:2. Find the equation of the line. Very simple question. Let we have this line.
इसको दोनों तरफ एरो मार्क करेंगे क्योंकि दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हैं. एंड लेट इट कट्स एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए. इट्स कोऑर्डिनेट आर a0. ओके. And similarly we take this point as B. Its coordinate are 0, B. So here we have a point R having coordinates HK, dividing this in the ratio 1:2. Therefore R point का H coordinate will be 2a plus 1 into 0 upon 2 plus 1, and k will be 1 into b plus 2 into 0 upon 2 plus 1. That is h will be 2a upon 3 and k will be b upon 3. So which implies A is equal to 3h by 2 and B is equal to 3k. Now equation of line through AB, that is in intercept form, will be x upon A plus y upon B is equal to 1. तो A और B की ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं. इनको हम यहां से पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे. दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड लाइन विच इंप्लाइज x अपॉन 3h बाई 2 प्लस y अपॉन 3k बाई 1. दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन h बाई 2 प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 3. अब यहां पर we can write this as 2x upon h plus y upon k is equal to 3. Cross multiplying 2kx plus hy is equal to 3hk. ओके. तो ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है. इट इज योर आंसर. बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, prove that 3 points are collinear. Solution: let A point is 3, 0, B point is -2, -2 and C point is 8, 2. हाँ जी सर, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग आ रहा है. इसको देख लो आप पहले क्वेश्चन को. ठीक है. उसको आपको ट्राई करिएगा. मेथड मैंने बता दिया. अगर कुछ गलती होगी तो मैं उसको देख लूंगा. ठीक है. ठीक है सर. पिछले वाला ये देखिएगा आप. 1:2 में आपको डिवाइड करना है तो इट इज 2a अपॉन 3 और 1b अपॉन 3. तो ये यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3/2h. a की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3/2h और b की वैल्यू आ जाएगी 3k. ठीक है. स्मॉल a b की वैल्यू आ गई. तो लाइन की इक्वेशन उसने पूछा है. लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x बाई a दैट इज 3/2h प्लस y बाई k दैट इज 3, y बाई b होती है 3k इज इक्वल टू 1. ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन. दैट्स ऑल. इट इज योर आंसर. इंटरसेप्ट फॉर्म में स्मॉल ए बी की वैल्यू आपने पुट कर दी. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना. ठीक है. तो मैं भी देख लूंगा, आप भी देख लेना. नेक्स्ट, यहां पर 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी. तो आप यहां पर इक्वेशन निकाल लेंगे. इक्वेशन ऑफ ए बी, तो y माइनस y1 आप ए से पास करा लीजिए, इसको आसान रहेगा. So y minus y1, x minus x1 and slope of AB. So -2 minus 0, -2 minus 3. So it will be y is equal to -2 over -5 x minus 3. ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. It will be 5y
is equal to 2x minus 6, which implies 2x minus 5y minus 6 is equal to 0. ये आपकी इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई. ओके, अब तीसरा पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो हम पुट करके देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x माइनस 5y माइनस 6. इसके अंदर हम पॉइंट पुट करते हैं 8 एंड 2. सो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू y माइनस 6, दैट इज 16 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 6, दैट इज 16 माइनस 16, विच इज 0. ओके, विच इज राइट हैंड साइड. तो आपने देखा कि ये तीसरा पॉइंट सी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच इंप्लाइज तीनों पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलीनियर. ओके, ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलीनियर है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं. अगर यहां पर कोई और पॉइंट भी होता, डी ई एफ एंड सो ऑन, कितने भी पॉइंट होते, उनको बारी बारी से इसमें पुट कर हम चेक कर सकते हैं. वो सारे पॉइंट अगर सेटिस्फाई करते हैं तो एक ही लाइन पर लाई करेंगे. शुरू के 2 पॉइंट आप ले लीजिए, उनसे पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. उसमें बाकी के पॉइंट्स पुट करके चेक करते रहिए. अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो उस लाइन पर लाई करेंगे. 3 पॉइंट है, कोलीनियर है, यहां पर हमने चेक कर लिया.